Hello everyone, welcome to SwiftLearn, India's most sincere learning destination for classes 1 to 10. My name is Jagrat and today I bring to you the third part of your ongoing series, Probability. So, those who are new to this channel, I want to highlight some key features of SwiftLearn. Here at SwiftLearn, we provide 100% live interactive classes, personalized attention to every student by having a batch limit of 6 students per batch, a dedicated acad mentor team that works on your progress and provide a customized feedback for you, and we cover whole syllabus based on the latest pattern of ICSE and CBSE. We provide you with your detailed progress report from the first day of your joining till your end of your course. We have SATs so that you can analyze yourself at national levels, unlimited practice sets to choose from and to solve from so that you can work on yourself and improve on yourself. And we also have subjective tests as well so that you can prepare well for your school exams. Now let's move forward to the topic that is probability. But those who have not already liked, subscribed and press the bell notification, please do that so that you don't miss any future updates from our channel. सो गाइस आज हम प्रोबेबिलिटी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और जिन लोगों ने नॉट थर्ड चैप्टर आई एम सॉरी थर्ड पार्ट जिन लोगों ने फर्स्ट 2 वीडियोस नहीं देखी हैं आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दोज वीडियोस and come back. They are really quick videos. You can watch them at 2x speed and understand every topic and then come back because today's class is going to be about mind map of probability. जो लोग वन नाइट फाइट वाले हैं ना, जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं क्या जल्दी जल्दी से देख के कर लेते हैं, तो ये बेटा ये क्लास आपके लिए ही है. कोई बात नहीं, कल टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से इस वीडियो को देख लो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और मैं हर क्वेश्चन में प्रीवियस वीडियो का भी कवर करूंगा. आई विल कवर एवरी टॉपिक ऑफ द प्रीवियस वीडियो एज वेल. Okay, so if anyone is having one night fight kind of thing and tomorrow is the exam, so this is the video for you. Don't miss it. Watch the videos till last. We are having so many of multiple choice questions. Okay, concept based questions like those are the subjective questions as well. So today's class is just going to be about questions and all. So all your concept, all your doubts will be cleared at much base level, and I will solve all the questions fully. Don't worry about it. Okay. And let's move forward with the mind maps. So beta, what is mind map? Mind map gives you an overview, like एक ईगल जैसे ना, जैसे ईगल ऊपर से देखता है तो वो वाला व्यू देता है आपको चैप्टर के बारे में. जैसे जब आप when you see a city from a tip of a hill, so आपको काफी अच्छे से दिख जाता है ना. When you see a city from a tip of a hill, you can see all the like highways and all the roads, that this house is there, this house is there. So mind map does that for you in the form of chapter. Okay, so mind maps are really important after you finish the chapter. Okay, so the first mind map is about the first topic, like the first title of the chapter was probability. Okay, but there were 2 types of probability: experimental probability and theoretical probability. So what really is experimental probability and theoretical probability? So beta, in experimental or empirical probability, there is the costing of the experiment is low. You can have that experiment as many times as you want. Like it's a real life thing. You can toss a coin, not you, you can have a robot to do that for you. You can toss a coin 1000 times and there won't be any repercussions or any expensive cost of it. Okay, and you can note down the scenarios like you are getting 600 times head, 200 times tails, and this like this kind of thing you can have. But theoretical probability is calculated for the scenarios in which experimenting again and again can be hasty, hectic and costly as well. Like when you want to figure out that a satellite will launch successfully or not, at that time you can't go with the thing like let's launch 10 satellites. If 7 goes well, 3 won't go well, so 11th one will also go well. So we can't do that. So in theoretical probability, we work on the things that are quite expensive and hefty. And we like अब इसका कैसे करते होंगे? So we have the previous data, like the data of the clouds, the data of the wind speed, the earth's rotation. There are many different factors that account for this probability. The computer feeds everything and then this probability formula comes into play, like number of favorable outcomes. Like what are the favorable outcomes? What do we want? We want that satellites should launch successfully. And number of all possible outcomes. ये कैसे बढ़ते होंगे? Satellite won't launch. एक तो ये हो गया. Satellite की क्या launch होने की starting में एक problem हो सकती है. Like if it will be launched in the orbit quite perfectly. या ऊपर जाके जैसे अलग होता है ना, differentiate होता है. Okay, differentiate क्या उसमें कुछ problem आ सकती है. तो ऐसे different scenarios हैं failures के.
तो वो आई गेस नीचे आते होंगे, राइट? सो theoretical probability आपके assumptions पे base होती है. Theoretical probability is based on your assumptions, whereas experimental probability is based on the data that you are provided with, right? So let's move forward. Okay, so the second mind map is about three of the important words that we used. Okay, what will happen if the event is sure to happen? Like confirm है कि जब आप स्विफ्ट पे पढ़ रहे हो तो आपके मार्क्स खराब आ ही नहीं सकते, ठीक है? What is complementary event? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है? कंफर्म है कि इफ यू कम लेट टू योर हाउस योर मम्मा विल बीट यू. दैट इज सो दैट इज अ नेगेटिव काइंड ऑफ थिंग, राइट? एंड एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन आउटकम इज पॉसिबल. तो एक बार इसको एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया, एक बार और अच्छे से समझते हैं. ओके, सो बेटा श्योर इवेंट इज लाइक दैट 100%, इट इज 100% दैट दिस विल हैपन. सो एट दैट टाइम यू विल जस्ट राइट द प्रोबेबिलिटी एज 1. No brainer in that. If something is supposed to happen, 100% chances are there. So you will get that probability 1. How? Like if you roll a dice. Okay. So what is the probability of getting a number less than 7? What is the probability of that? Okay. So all the numbers are less than 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. All of them are less than 7. So that's why the probability of this question, what I asked, like what is the probability of getting a number which is less than 7 is 100%. Okay, it will always happen that you will get a number less than 6. So that is 1. Now complementary event, let's not use this complementary word, let's use the word opposite of that event. Okay, like if two players are playing, okay, like two players, no, let's take Sanjay and Rohan are playing. Okay, so if Sanjay won't win, who will win? Rohan will win. So if I give you the probability of that the chances of Sanjay winning the game is 0.68. So that would be the probability E of the event. Okay, and what are the chances that Rohan will win? Okay, so you will just subtract 1 from it, like 1 minus 0.68. This will give you the complementary event. Like if Sanjay doesn't win, then what? Rohan is winning, right? So either you can write P bar, there should be a bar here. Okay, they forgot that. Let me put that for you. There should be a bar here. Okay, so this is E bar, P bar, the probability of event happening, like event not happening. So if Sanjay is not winning, so Rohan is winning. So that is why 1 minus PE. I think I won't exaggerate it. Okay, I think it's quite easy. You guys are quite understood it. Okay, now elementary event. What is elementary event? Only one possible outcome is there. Okay, so if you like pull out one card from the deck of card and any other scenario is not given, like that card should be what and what, so only one elementary outcome is there. Okay, this will happen. Okay, then it is known as elementary event. Okay, let's move on to some multiple choice questions. So beta, please do these questions very sincerely, because be it ICSE or be it CBSE, the present pattern is based on MCQs. Okay, and don't ever think that MCQ questions are easy. If that would be so IES, IIT सब जल्दी जल्दी clear कर लेते, क्योंकि उसमें सब में MCQ questions ही आते हैं. Okay, so please don't do that. Okay, MCQs are not easy, they are like quite confusing. Okay, all the answers seems correct sometime. So be very attentive while doing the MCQs. Okay, बहुत ध्यान से MCQs को करना, क्योंकि सारे आंसर एकदम से सही लगते हैं. आप क्वेश्चन देखोगे, आप डाइव कर दोगे क्वेश्चन पे, फिर जब रूम से बाहर आके देखोगे दोस्त बता रहा होगा अरे यार इसका आंसर ये नहीं ये था, फिर आप बहस करोगे अरे नहीं ये था, फिर वो बोलेगा अरे ऐसा नहीं ऐसा, तो आप लोग बोलोगे अरे यार ये तो देखा ही नहीं. ओके, फिर खुद पे हंसी आती है कि यार ऐसा कैसे कर दिया. सो बी वेरी अटेंटिव व्हाइल सॉल्विंग द MCQs. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर. एक डाइस को एक बार फेंका गया है, तो ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपको इवन नंबर मिलेगा. ये प्रोबेबिलिटी क्या है? ओके, सो वीडियो को प्लीज पॉज करो एंड फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, एंड गाइस जिसको समझ नहीं आया एक बार और समझाता हूं. एक डाइस को आपने एक बार फेंका है, तो उसकी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, तो मेरे कुछ स्वीट से बच्चे हैं जिनको थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है. कोई बात नहीं, हम उनके लिए क्वेश्चंस कर रहे हैं, और जो लोग इसे कर चुके हैं और आंसर का वेट कर रहे हैं, प्लीज स्किप द वीडियो फॉर 10 सेकेंड्स एंड आप अपने आंसर्स की तरफ मूव कर सकते हैं. ओके, वैसे समझ भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. ओके, सो बेटा देखो, सबसे पहले जब भी आपको मैथ्स का क्वेश्चन मिलता है ना,
तो राइट द फॉर्मूला, कौन से चैप्टर चल रहा है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर चल रहा है ना। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर का फॉर्मूला क्या है, पी ई इक्वल्स टू, like this bar will come, number of favorable, I'm just writing in short, outcomes, okay, let's like out also, outcomes divided by number of total outcome. Is it clear? यहाँ तक क्लियर है सबको? सबसे पहले फॉर्मूला लिखा करो. ओके, नाउ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या है, आई एम जस्ट राइटिंग फेवरेबल. ओके, फेवरेबल. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या है, वी वांट इवन डिजिट्स. ओके, सो रुको रुको रुको, पहले फेवरेबल नहीं आते, पहले टोटल ले लेते हैं ताकि आपको फेवरेबल पता लग जाए. तो बेटा टोटल आउटकम कितने होंगे, कितने हो सकते हैं टोटल आउटकम. एक डाइस फेंका आपने, 6 होंगे. क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. टोटल कितने आउटकम है, 6 ही तो है. सो दैट्स व्हाई वी विल राइट डायरेक्टली राइट व्हाट, वी कैन डायरेक्टली राइट 6. टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके, 6 है. फेवरेबल आउटकम कितने हैं, उसने क्या मांगा है, इवन मांगा है. तो एक बार रफ में कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, इवन कितने नंबर्स हैं इसमें, 1 2 उप्स 2 एंड 3. कितने इवन नंबर आए, 3 नंबर आए. तो फेवरेबल आउटकम आपकी कितनी हो गई, 3 हो गई, है ना. तो अब फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट, मैं यहीं पर स्लैश कर दे रहा हूँ. सो अब बेटा हम फॉर्मूला लगा रहे हैं. तो पी ई, इवन बोल लो या इवेंट बोल लो, इस बार तो सेम ही है. पी ई कितना आ रहा है आपका, नंबर ऑफ फेवरेबल दैट इज 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल दैट इज 6. तो आंसर आएगा 1/2. ओके, आई थिंक क्लियर है. सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, उसके बाद टोटल आउटकम देखो, सिंस इट वाज राइट सो इट वाज 6. देन फेवरेबल आउटकम 3 है. कैसे है, क्योंकि 3 इवन नंबर होता है, 6 इवन होता है, 4 इवन होता है और 2 इवन होता है, जो टोटल आउटकम है हमारे उसमें से. सो दैट्स वाई ये आ रहा है. ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा आप सभी को. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट आंसर इज 1/2. मेरा भी सही है, और जिन लोगों का सही है कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड. ओके, बी पेशेंट, एकदम से हमें एक्साइटेड नहीं होना है, ठीक है. ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज इन अ लीप ईयर. एक लीप ईयर में 53 मंडेज होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. तो वीडियो को पॉज करो. ओके, एक बार सोचो, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं. ओके, एंड 53 मंडेज होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. ओके, सो लीप ईयर हर साल, लाइक देखो एक वीक में कितने मंडेज होते हैं, ऐसे कैलकुलेट करो. टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखो, एक वीक में कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 7 होते हैं, है ना. फिर उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज, यूजुअली 52 होते हैं, 53 मंडेज आपको चाहिए. ओके, सो मतलब वो जो लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा डे आ रहा है दैट इज 29th of February, वो मंडे होगा, इसके चांसेस कितने हैं. ओके, सो इसका आंसर है 2/7. Okay, so let's move forward to the next question. A card is drawn from a well shuffled, from a deck of well shuffled card of 52 cards. तो find the probability of getting a king of red suit. रेड सूट कह लो या रेड ग्रुप कह लो. ओके, जिन लोगों को कार्ड्स के बारे में पता नहीं है मैं बता देता हूँ. ओके, सो आई डोंट थिंक वैसे ज़्यादा लोगों को पता हो नहीं होगा. ओके, फिर भी बता देते हैं. तो बेटा कार्ड्स के ना 4 सेट होते हैं, 4 सूट्स कह लो या 4 क्या कह लो, सेट कह लो. फॉर यू आई विल से सेट्स एंड सूट्स एज वेल. ओके, सो 4 सेट्स होते हैं जो 2-2 में डिवाइडेड होते हैं. 2 रेड होते हैं एंड 2 ब्लैक होते हैं. ओके, सो जो 2 रेड सूट्स होते हैं वो होते हैं हार्ट बना देते हैं, एंड डायमंड. नाउ 2 ब्लैक होते हैं, तो उसको हिंदी में बोलते हैं पान, उल्टा पान भी बोलते हैं. वो पता नहीं मुझसे बनेगा नहीं बनेगा. ओके, चलो ट्राई करते हैं. बन गया यार, बन गया. ओके, सो 2 ब्लैक्स, एक तो ये होता है, ठीक है. इसको इंग्लिश में वो बोलेगा स्पेड. क्या बोलेगा, स्पेड बोलेगा.
हार्ट, डायमंड, स्पेड, स्पेड लिख देता हूँ क्योंकि अक्सर बच्चे स्पेड में ही कंफ्यूज होते हैं, स्पेड। एंड एक और ब्लैक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लब। सो उसमें 3 बॉल्स जैसे आप मान लेते हो। ओके, सो ये आपका क्या होता है, क्लब होता है। ठीक है, तो ये 4 आपके होते हैं। एंड हर 4 में कितने वो होते हैं कार्ड्स, 13 कार्ड्स होते हैं हर सेट में। सो 13 × 4 आप जब करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, 52 मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आए? तो कार्ड्स की जो बेसिक चीज़ थी वो मैंने आपको बताई। ठीक है, अब 13 कार्ड्स में से मैं टॉप से लेकर बॉटम तक बता रहा हूँ। ओके, पहला कार्ड होता है एस। क्या होता है, एस होता है। दूसरा कार्ड क्या होता है, लाइक मैं ऑर्डर में बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा कार्ड कौन सा होता है, एस। फिर उससे बड़ा कार्ड होता है, लाइक उससे छोटा कार्ड होता है किंग, देन क्वीन, then jack, and then 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. दिस इज वॉट हैपन्स। जिन्होंने कार्ड्स देखे उनको पता होगा कि 1 नहीं होता है। 1 अगर होता भी है तो यहाँ नहीं होता, उसको एस बोलते हैं, इक्का बोलते हैं, वो सबसे ऊपर होता है। क्या यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ रही है? आ रही है? चलो ठीक है, एक वाइट बोर्ड छोटा सा प्रोड्यूस करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये आपका सारा रफ वर्क था, मतलब कि प्रीवियस नॉलेज आप बोल सकते हो कि आपको होनी चाहिए थी, मतलब नहीं, नॉट लाइक होनी चाहिए थी, बट हाँ, कार्ड्स कोई नहीं खेलता आजकल, ऊनो खेलते हैं सब, पबजी खेलते हैं, कार्ड्स नहीं खेलता। ठीक है, तो कभी मन करेगा तो पेरेंट्स के साथ बैठना, पापा मम्मी के साथ खेलना, इट्स अ गुड गेम। पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, जब अक्सर वो डांट देते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि वो परेशान रहते हैं। कभी भी पेरेंट्स आप पे गुस्सा करें तो देखना गलती सच में आपकी थी या नहीं थी, और जिला मत देना उन पे, वो हो सकता है किसी और बात पे परेशान हो। ओके, सो पेरेंट्स आर द टफेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। गर्लफ्रेंड नहीं है, पेरेंट्स को समझो। पेरेंट्स गर्लफ्रेंड को तो समझ ही लोगे कभी ना कभी, फिर भी नहीं समझ पाओगे। ओके, पेरेंट्स को समझना टफ होता है, लेकिन एक बार समझ गए ना तो उनसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता आपको। ओके, सो कमिंग टू द टॉपिक, a card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, probability of getting a king of red suit। तो बेटा सबसे पहले रेड पे आओ, कितने सूट होते हैं रेड के, कितने सेट होते हैं, 2 सेट होते हैं। ठीक है, 2 सेट होते हैं। और मैंने किंग कितना बोला, हर सेट में कितने किंग होते हैं, एक किंग होता है ना। और 2 तो सेट होते हैं रेड के, तो एक किंग किसका होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, एक किंग आपका किसका होगा, हार्ट का होगा। एक किंग तो आपका किसका हो जाएगा, हार्ट का हो जाएगा। एक किंग आपका किसका हो जाएगा, डायमंड का हो जाएगा। एक किंग आपका किसका हो जाएगा, डायमंड का। वन किंग विल बी ऑफ हार्ट, वन किंग विल बी ऑफ डायमंड। सो टोटल किंग is equals to 2 and total cards is equals to 52. So formula for probability of an event, that is the event is king. Favorable outcomes, we want king, so that is 2. And total cards, that is like total possible outcomes, 52 other cards are there, so 52. So the answer is 1/13. Okay, बोर्ड थोड़ा सा मैसी हो गया, अपोलोजाइज फॉर दैट। ओके, आगे से ध्यान रखेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो 1/26, जस्ट अ सेकेंड। सो 2/52, आई थिंक मैंने गलत काट दिया था। ओके, when the probability of getting a king of red suit, so in red suit there are 2 kings. Yeah, my answer is correct. 2 2s are 4, 2 6 are 12. Okay, sorry, I cut it them wrong. Okay, I simplified them wrong. Okay, हाँ पता है मुझे, कट इट जैसा कोई वर्ड नहीं होता। आजकल तो ग्रामर के लोग इतने सारे होते हैं ना, आई सिंप्लीफाइड दैट रॉन्ग। ओके, अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 4। तो 50 नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, सो लेट अस प्रोड्यूस अ वाइट बोर्ड एंड गाइस आप लोग पॉज करो वीडियो एंड सॉल्व करो। ओके, आप लोग को आता है ये वीडियो, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ कि जिनको नहीं आ रहे हैं, जिनको आ रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट योरसेल्फ। ओके, सो अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। ओके, सो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3
एंड ऐसे करते करते फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स आपके पास है. ओके, सो आपके टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? या पॉसिबल नहीं लिखते हैं, आउटकम लिखते हैं, शॉर्ट शॉर्ट में करते हैं काम. थोड़ा मोटा नहीं हो रहा मार्कर. ओके, टोटल पॉसिबल कर देते हैं आउटकम. टोटल पॉसिबल आउटकम आपके कितने हैं? 15. ठीक, उसने बोला है प्रोबेबिलिटी दैट द मल्टीपल ऑफ 3 and 4. तो फेवरेबल आउटकम आपके अब मैं निकालना चाह रहा हूं. Favorable outcomes I am trying to calculate. So he is saying that it should be a multiple of 3 and 40, like 4, 3 and 4. So I will write the table of 3 and then I will compare that what are the same numbers in table of 3 and table of 4. So 3 times, like from 1 we have to start, so we have to go with 3. So 3, 6, 9, ओके. सो ये 3 की टेबल हो गई. अब लेकिन मुझे 50 तक जाना है बेटा, तो आई नीड टू कंटिन्यू. सो 33, okay. So now let's write the table of 4. So 4, ओके. यहाँ तक क्लियर है? ओके. सो अब बस आपको कंपेयर करना रह गया. तो देखो बेटा, 36 यहाँ भी आ रहा है, 36 यहाँ भी आ रहा है, और कोई कॉमन दिख रहा है? 24, 24 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 12 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है. इसके अलावा और कुछ है कॉमन? नहीं है, और कुछ कॉमन नहीं है. तो एक सिनेरियो कॉमन. सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 1, 2, 3. 3 नंबर्स ऐसे हैं टोटल जो 3 के भी मल्टीपल है और 4 के भी मल्टीपल है. सो द आंसर इज P event is equals to 3/50. ओके. ओह, आंसर तो है ही नहीं. मैंने कुछ मिस करा. क्या मिस करा देखें. ओके, comes. So that is fourth, like 48 is the also a number that is divisible by 3 and 4. Okay, so now I will add, like, sorry, 3 plus 1, that is 4 by 50. So 4 ones are 4, sorry, 2 twos are 4 and 225. Okay, so answer is 2 upon 25. Is it clear, beta? Is it clear? Okay, let's move forward. A jar contains 21 marbles. Some are red and the others are white. If a marble is drawn at random from the jar, the probability that it is red, then the number of white marbles in the jar. Okay, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है. Okay, मेरी क्लास में कोई भी टफ वर्ड यूज नहीं करेगा. ओके, टफ जैसा कोई वर्ड नहीं होता है. आप जब सवाल को टफ बोलते हो तो बात तो वहीं खत्म हो गई ना. ये काम टफ है तो फिर करोगे क्यों? ओके, कोई भी कभी भी टफ वर्ड यूज नहीं करेगा मेरी क्लास में. ओके, चीजें ट्रिकी होती हैं, टफ नहीं होती हैं. ओके, चलो सॉल्व करते हैं इसको. अ जार कंटेन्स 21 मार्बल्स. ओके, तो सबसे पहले बेटा जब फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चीजों को लिखा करो ना, कि फॉर्मूला वाली चीजें ढूंढा करो. टोटल मार्बल्स, टोटल मार्बल्स कितने हो गए आपके पास? 21 मार्बल्स. Some red and others are white. If the marble drawn from the jar at random, the probability that it is red is 2/3. Okay, P red is 2/3.
टोटल आपको पता है, ये हो गया, ठीक है। तो अब एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, अलजेब्रा लगानी बेटा इस बार। ओके, पी रेड इज इक्वल्स टू favorable, like I won't write favorable this time, I will write total red marbles. Total red marbles divided by total marbles, right? यही तो होना था। तो total red marbles, P red, what is P red? Total red marbles, how many total red marbles are there? सो टोटल रेड मार्बल्स कितने थे नहीं पता ना, तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, so the things we know we will substitute them. So p red it is given, p red is given to you, तो p red की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, फ्रैक्शन लिख दिया 2/3। नाउ टोटल रेड मार्बल्स, टोटल रेड मार्बल्स कितने हैं क्या हमें पता है, नहीं पता है, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, टोटल रेड मार्बल्स। ओके, now total marbles, how many total marbles are there? So 21 total marbles are there, so that's why I'm writing 21. Now it is simple algebra कि जो नंबर यहाँ डिवाइड में होता है वो वहाँ जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो टोटल रेड इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई 2/3। आई एम अज्यूमिंग कि इतनी सी बात आप सबको आती होगी कि ये वाला नंबर इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई होगा। ओके, so now 3 ones are 3, 3 sevens are 21, so 7 times 2 is 14. So now you got total red marbles, but did he ask for red marbles? No, he asked for total white marbles. तो आपको जब टोटल मार्बल पता है 21 है, आपको रेड पता है 14 है, you know what red is 14, so now all you need to do is figure out what was white. So white was 21 minus 14 and you will get 11 minus 4, that is 8, I think, am I right? 7. Okay, and then like 1 was the carry, so now 0. Okay, is it clear till here? तो व्हाइट मार्बल्स कितने हैं आपके पास, 7 व्हाइट मार्बल्स हैं। जिन लोगों ने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन किया था, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। ओके, और जो लोग मेरे साथ साथ कर रहे हैं, डोंट कीप इट अप, खुद करने की कोशिश करो थोड़ा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितनी होगी, बताओ बताओ बताओ। आई थिंक मन में तो सबके आंसर आ ही गया होगा। जिन लोगों ने पहले 2 वीडियोस देख रखे हैं उनके लिए बहुत ईजी था। दोज ऑफ यू हैव सीन द प्रीवियस 2 वीडियो, इट इज क्वाइट ईजी क्वेश्चन। ओके, फॉर दोज ऑफ यू हु हैव जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम दिस वीडियो, आई वांट टू टेल यू देयर वाज अ फॉर्मूला, राइट? पी ई बार इन द माइंड मैप, ई बार इज इक्वल्स टू 1 minus p e, that was the formula, right? So leave that 1 here only and make this p jump here. So p e plus p e, oh I'm sorry, p e bar is equals to 1. So that's how 1 is coming here. Okay, next question. The sum of possibilities of all the elementary events of an experiment is all the possible elementary of events. This was in the second video. जब आप सब कुछ निकाल देते हो, तो आपने प्रोबेबिलिटी होने की भी निकाल ली और प्रोबेबिलिटी नॉट होने की भी निकाल ली, जब सबको ऐड करोगे तो आंसर कितना आता है, 1. द सेकेंड क्वेश्चन इज सेम, सो दैट इज ऑल्सो 1. ठीक है, एक और एग्जांपल दे दूं कि अगर आपने डाइस में 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, वो आ गई 1/6. 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, क्योंकि 2 कितने होते हैं, 1 ही तो होते हैं। ऐसे करते करते आपकी 6 1/6 आ जाएंगे। ओके, एंड व्हेन यू विल ऐड इट, यू विल गेट 6/6 एंड दैट इज 1. सो 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, एलिमेंट्री इवेंट, जितने एलिमेंट्री इवेंट्स हैं सबको जब ऐड करा, ओके, सो आंसर कितना आता है, 1 आता है। जितने एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, जिनका जो न्यूमरेटर होता है वो 1 आता है, लाइक टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 1, तो उनको हम एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे।
तो डाइस में टोटल 6 आउटकम्स जो होते हैं सब एलिमेंट्री होते हैं, 1/6 1/6 1/6 1/6. So जब आप उनको ऐड करोगे, you will get 6/6 and the answer is 1. This was the example of this question. Okay. Now the probability of an event is greater than or equal to or less than or equal to. बेटा इनमें से पहले एक चीज बताओ, इनमें से क्या चीज प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? ठीक है, नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी होती नहीं है. ठीक है, फ्रैक्शन में होती है, हमने देख रखा है. परसेंटेज में हम बोल सकते हैं कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन बना सकते हैं. 100% क्या हो जाएगा, 100/100 कर दो. यही तो करते हैं फ्रैक्शन को. और क्या 7 देखिए प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की कभी? मैंने क्या बोला था, कोई चीज़ 100% अगर हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है. 7 तो मैंने कभी बोली नहीं. ओके, तो हमें क्या पता चल रहा है इससे? और फ्रैक्शन से आंसर किस में आता है? डेसिमल में आता है. 0.06 डेसिमल में आता है. तो हमें क्या समझ, और क्या बोला था मैंने कि कोई चीज़ ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो होगी नहीं, 0. और कोई चीज़ होने की कितनी हो जाएगी? 1. तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0. एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. The probability of an event that cannot happen, ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0. और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं. नाउ लेट्स हैव सम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लाइक जिनका हमें अच्छे से सॉल्यूशन लिखना होता है. ओके, सो किरण टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन. किरण ने 2 डिफरेंट कॉइन्स को क्या किया? टॉस किया, एक के बाद एक. One was 1 and the other was 2. What is the probability that she will get at least one head? एक बार तो हेड आएगा ही आएगा. इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? किरण ने 2 कॉइन्स थे, उनको उछाला एक के बाद एक. ठीक है, वन ऑफ वॉज ₹1 एंड वन वॉज ₹2. और बताना है कि एटलीस्ट 1 टाइम हेड, अगर उसने एक और बार उछाला तो 1 टाइम हेड कब आएगा. ओके, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, कितने हैं टोटल पॉसिबल आउटकम. तो एच आ सकता है, एच टी आ सकता है, टी एच आ सकता है, टी टी आ सकता है. मतलब पहले वाले कॉइन में भी हेड आया, दूसरे वाले कॉइन में भी हेड आया. पहले वाले कॉइन में हेड आया, दूसरे वाले कॉइन में टेल आया. पहले वाले कॉइन में हेड टेल आ गया, दूसरे वाले कॉइन में हेड आ गया, या फिर दोनों में टेल आ गया. सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स बेटा, हाउ मेनी? 3 आउटकम्स, 4 पॉसिबल आउटकम्स. एंड व्हाट डज ही आस्क्ड, व्हाट डज दे आस्क्ड, लाइक द पॉसिबल आउटकम्स हैविंग एटलीस्ट 1 हेड. एक हेड तो होना ही चाहिए, तो 2 हेड वाले से भी क्या दिक्कत है? एक हेड होना चाहिए, तो मैं 2 दे दिया मैंने. देन हेड एंड टेल और देन टी एच. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने? जितने 4. हमारे लिए फेवरेबल कितने, जो हम चाहते हैं? 3. Therefore probability of getting an event is 3/4. Getting this event is 3/4. आई थिंक आप सभी को क्लियर हुआ होगा. अगर जल्दी से क्लियर हुआ तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट में बताओ. स्वीट से कमेंट कर दो, स्वीट से लाइक कर दो, ताकि मैं भी देख सकूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, आज की क्लास थोड़ी लेंदी क्यों हो रही है? क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. जिसको क्लास लेंदी लग रही है ना, वो पक्का है कि वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद सॉल्व नहीं कर रहा है. क्योंकि जो खुद सॉल्व कर रहा होगा उसको तो एक्साइटमेंट हो रहा होगा कि मेरा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो देख लो अपने हिसाब से. ठीक है, और क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है अगर आप वीडियो एक के बाद एक देखे जा रहे हो. एग्जाम में मैं लिख के देता हूँ, कुछ याद नहीं आएगा अगर आपने अभी लिख के प्रैक्टिस नहीं करा तो. ठीक है, ये मम्मा पापा वाला डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ मैं कि बेटा लिख के याद करो, लिख के याद करो. बेटा मैथ्स है, वो मूवी थोड़ी ना देख रहे हो कि वीडियो देखते जाओगे और एग्जाम में सब याद आ जाएगा. ऐसा नहीं होता है. ठीक है, वीडियो पॉज करो, खुद करने का ट्राई करो, तभी तो आपको पता चलेगा कि कहाँ फंसे हो करके. तभी तो कोई दूसरा निकालेगा. जब फंसे ही नहीं तो निकालेगा क्या? वो तो आप देखते चले जा रहे हो. वो तो मैं स्पून फीडिंग कर रहा हूँ. ओके बेटा, जैसे बच्चों को सैरेलैक खिलाती है ना, सैरेलैक खिलाती है, वो खिलाती है. ओके, ये मैंने ये घोला, ये लो बेटा, ये लो खा लो, ये लो बेटा, ये लो खा लो. ऐसा थोड़ी ना करना है. थोड़ा थोड़ा खुद सॉल्व करने की कोशिश करो. ठीक है, okay. The piggy bank contains 100 50 paisa coins and 50 1 rupee coin and 20 rupees 2 coins. Then 10 rupees 5 coins. If it is equally likely, in the very first slide मैंने आपको बताया था equally likely का मतलब क्या होता है. ठीक है, equally likely that one of the coins will fall out. Equally likely मतलब ऐसा नहीं कि 5 का कॉइन मोटा है तो 5 का कॉइन नहीं निकलेगा. ठीक है, उसने बोला नहीं, सारे कॉइन निकलने के चांसेस बराबर बराबर हैं. Then fall out when the bank is turned. ये बैंक की बात नहीं कर रहे, पिगी बैंक की बात कर रहे. ठीक है, SBI बैंक पलटने मत चले जाना. So the bank is turned upside down. What is the probability that the coin will be a 50 पैसा coin? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो कॉइन है वो 50 पैसा का कॉइन हो? पहला क्वेश्चन आपका ये है. ठीक है,
तो क्या बोला था, कभी भी चैप्टर जब हम करते हैं तो फॉर्मूला के हिसाब से सोचा करो। फॉर्मूला में मुझे एक नीचे लिखना होता है टोटल और ऊपर लिखना होता है फेवरेबल आउटकम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो इससे मतलब थोड़ी ना कि सिक्का कौन सा गिरे, टोटल आउटकम्स का मतलब इस क्वेश्चन में क्या होगा, टोटल कॉइन्स होगा, ठीक है, टोटल कॉइन्स इन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो टोटल कॉइन्स आपके कितने आएंगे, लेट्स सी। 50 पैसा, 150 पैसा कॉइन है, सो 100। 50 1 रुपी कॉइन है, सो 50। 20 2 रुपीज कॉइन, 20। एंड 10 5 रुपीज कॉइन, 10। So 100 plus 50 150, 150 plus 30 130. So 130 is your total number of coins, not total favorable. Like total favorable is 50 paisa, like total 50 paisa coins. How many are there? 100. So it is 100. Okay, so the answer for first part will be P, event. Event is, it will be a 50 paisa coin. So number of 50 paisa coin, that is 100, divided by total number of coin, that is 130. So the answer is 10 by 13. The chances are very good that it will be a 50 पैसा coin. ओके, रियल लाइफ से कंपेयर करो तो बेटा जब 100 सिक्के जो है 50 पैसा कॉइन के हैं, तो अगर आप तुक्का भी मारते तो ये बोलते हैं कि 50 पैसा गिरने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैथमेटिकल जो प्रोबेबिलिटी है बस उसको वो प्रूव कर रहा है, ओके। तो अगला वाला पार्ट बताता हूँ। इट विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, नॉट भी पूछा है, तो इसको करने के दो तरीके हैं कि बाकी कॉइन्स कर लो, बट मैं आपको सही तरीका जो होता है, क्योंकि जब उसने नॉट भी बोला है वो बताता हूँ। बेटा पहले बी निकाल लो, लाइक नॉट भी पूछा है ना, तो पहले बी निकाल लो कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी गेटिंग 5 कितनी आएगी, ओके। मैं फिर से वो सब नहीं लिख रहा हूँ फॉर्मूला वाला। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो 5 रुपये के कितने कॉइन है, 10 है, सो दैट इज वाई 10। और टोटल कॉइन्स कितने थे, 130 थे। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/13 है। तो अब P नॉट 5 निकाल लो ना। क्या था फॉर्मूला P नॉट 5 का, 1 माइनस P5। P आने का जो 5 आने का जो है, तो 1 माइनस 1/13, दैट इज 13 माइनस 1 अपॉन 13। क्या किया मैंने यहाँ पे, एलसीएम लिया बेटा, ओके। यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया है, ओके। सो 13 माइनस 1 इज 12/13। सो P नॉट 5 आने के चांसेस भी अच्छे खासे हैं कि जो सिक्का गिरेगा वो 5 का सिक्का नहीं होगा, ओके। लाइक बहुत रेयर चांसेस है, 1 in 13 चांस है कि वो 5 का सिक्का होगा, ओके। क्या क्लियर हो रहा है, ये सब क्लियर हो रहा है? प्लीज़ एक अच्छे से लाइक करो अगर आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं टॉपिक्स, एंड मैं आप लोगों के कुछ डाउट सॉल्व कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो कमेंट्स मैं सच में पढ़ता हूँ और मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग होते हैं और मुझे जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। सो प्लीज़ डू दैट। सो शरद बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? अब तो सारे बच्चों को आ ही गया होगा। वीडियो पॉज करो, जल्दी से पॉज करो। पी उसने क्या पूछा है, पी मेल पूछा है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, टोटल मेल डिवाइडेड बाय टोटल फीमेल, नो, टोटल फिश डिवाइड बाय टोटल फिश। सो टोटल मेल फिश कितनी है, 5 है। टोटल फिशेस कितनी है, 5 + 8, दैट इज 13। टोटल फिशेस कितनी है, 13 है। सो P मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/13, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बेटा जब भी एक डाइस फेंका जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, क्या कह रहा है वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं सिर्फ उसी के लिए अब क्वेश्चन कर रहा हूँ जिन लोगों को नहीं आ रहा है, जिन लोगों को आंसर चेक करना है, क्योंकि अगर आप वीडियो पॉज करके करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ओके। इट विल हेल्प यू, इट विल गो लॉन्ग विद यू, ओके। अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्राइम नंबर आने की बेटा प्रोबेबिलिटी है, what is the probability of getting a prime number, like total outcomes. If a dice is thrown, how many total outcomes are there? 1 2 3 ... 6. Total 6 outcomes are there, so I wrote 6, okay. I would be needing that, so 4 5 and let's erase that, 6, okay.
So total outcome 6. Prime numbers. How many prime numbers are there? 2 is prime, 3 is prime, and 5 is prime. So how many prime numbers are there? 3 prime numbers are there. So it is 3 by 6 and you will get 1 by 2. Is it clear? It better be. इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा तो फिर क्या ही होगा. तो वो फर्स्ट और सेकंड वीडियोस ने नहीं देखा, अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा तो ओके, नो प्रॉब्लम. अभी और भी क्वेश्चंस है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा बेटा, डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है. ओके, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. ठीक है, तो पहले मैं ये जो सर्कल्स मैंने बनाए इनको फिलहाल के लिए इरेज कर देते हैं. ओके, अब देखते हैं, इसके लिए कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक यूज करें, लेट्स यूज ब्लू. ओके, सो P बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में हो, इसके चांसेस क्या हैं? ठीक है, नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6. तो 1, 2, 3. So 3 numbers. What are the so 3 numbers are there. So 3 total numbers that are between 2 and 6 is 3, 4 and 5. So 3 and total outcomes is 6. So again the answer is 1 by 2. तो इसी को बोलते हैं 50-50% चांस है ना. Now getting an odd number. Now the question is about getting an odd number. So P odd. Let's see how many odd numbers are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many odd numbers are there? 1, 2, 3. So 3 odd numbers are there. How many total? What is the total possible outcome? 6. So again the answer is 1 by 2. Okay. अभी मैं सोचना कि डाइस वाले क्वेश्चन में हमेशा आंसर 1 by 2 है. ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. ये जिसने कर लिया वो बहुत ध्यान से पढ़ता है क्वेश्चन को. जिसने ये वाला क्वेश्चन कर लिया वो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ता है. ये दिख जाएगा उसके उससे. ओके, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. पहली लाइन में तुम्हारा क्लू है एक. 12 defective pens are mixed with 132 good ones. So total pens कितने हो गए total pens? गाइस वीडियो पॉज करो, टेम्पटेशन नहीं होना है कि सर सॉल्व कर रहे हैं, नहीं. पॉज करो और आगे थोड़ी देर बाद देखना सही आंसर आ रहा नहीं आ रहा. 12 defective pens are mixed with 132 good ones. So 132 plus 12 will be 144. Total pens कितने हो गए? 144 हो गए. It is not possible to look at the pen and tell whether it is not defective. One of the pen is taken out at the random. Determine the probability that the pen taken out is a good one. So how many good pens were there? 132. P good pen. So क्या आ जाएगा? 132 divided by 144. Right? And you can simplify it. 2 times 6 is 12. 2 times 6 is 12. 2 times 7 is 14. 2 times 7 is 2 times 2 is 4. Okay? 3 times 22. Okay? So this is the probability of getting a new pen, that is 11 by 12. No brainer. So do you know there is a fact that the probability of you being born was 1 in 400 trillion. जिसको ये फैक्ट समझ नहीं आया है वो हिमांशु सर की साइंस क्लास ले ले. ठीक है, हिमांशु सर हमारे सिफरन के फैकल्टी हैं, साइंस पढ़ाते हैं, एंड तब उसको ये वाला डू यू नो का फैक्ट समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा है. ओके बेटा, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने प्रोबेबिलिटी का माइंड मैप बनाया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करे प्रोबेबिलिटी पे बेस, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करे, सब्जेक्टिव असेसमेंट करे जो हमने लास्ट में सॉल्व करे, इसका पूरा आंसर लिखना पड़ता है. ओके, अब मैं आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आप वीडियो पॉज करके उसके बाद उसके आंसर्स देख सकते हो. यू विल आल्सो हैव द आंसर्स ऑफ देम एज वेल. ओके, मैं एक सेकंड का पॉज लूंगा जिसमें आप वीडियो को पॉज कर पाओगे. ओके, एंड आप क्वेश्चन तब तक देख सकते हो एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में उसका आंसर हो. ओके, So thank you guys, thank you for being patient to watch the whole video. और जिसने 2x स्पीड पे देखा है, very good, you saved some time. Okay, and practice करते रहना. MCQ questions are very important, and जिसको थोड़ा सा भी doubt है, go back and watch the first 2 videos and then come back and you will definitely like it. And जिसने अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन so that जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आए
तो आप लोग उसे मिस ना करें, एंड प्लीज डू लाइक एंड कॉमेंट, दैट रियली मोटिवेट्स मी. बाय.